اس کے دروازے پہ ہونے والی دستک انجان تھی۔ وہ بستر پہ نیم دراز تھا، لیکن ایک دم چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ پہ بندھی گھڑی کی طرف ڈالی جس پہ رات کے 9 کا وقت ہو چکا تھا۔ آ جاؤ، وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ جو منتظر نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا، آنے والے کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ بڑی امی، آپ کیوں آئی؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ حیرانی کے زیر اثر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سے آگے بڑھتے ہوئے انہیں پکڑا۔ انہیں بہت احترام کے ساتھ وہ بستر تک لایا۔ میں نے سوچا آج خود اپنے بیٹے سے ملا جائے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا سفید ہی چہرہ اسے بہت معتبر محسوس ہوا اور ان کے جواب نے اسے بے پناہ خوشی سے ہمکنار کیا۔ بھری امی، آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کو خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ پہلے ہی سارا دن عورتوں کے مسائل میں الجھی رہتی ہیں، حویلی کے حالات پہ نظر رکھتی ہیں۔ آپ خود کو اتنا نہ تھکائیے، بلکہ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھا کریں۔ وہ ان کے پہلو میں بیٹھا ان کے ہاتھ کو دباتے ہوئے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ میرے بچے خود کو بالکل ہلکان نہیں کرتی میں، اس لیے تم فکر مند نہ ہوا کرو۔ انہیں اس کی فکر مندی پہ بہت پیار آیا تھا۔ اب تو تم بھی ماشاءاللہ تاشفین کی طرح ذمہ دار ہو گئے ہو۔ تمہاری ماں تمہارے متعلق بہت فکر مند رہتی تھی، لیکن تمہارے بدلتے رویے نے اسے پرسکون کر دیا ہے۔ بات کے اختتام تک وہ مسکرا دی۔ میرا تو ابھی بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن امی اور ابو نے بڑے ابا کے آگے نہ جانے کون کون سی شکایتیں لگائی کہ اب انہیں میری ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہاں آزاد پرندہ اور اب آپ کے حضور کی قید میں پھنس چکا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آفس کی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر انہیں اس کے خیالات کی ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو اس کے سارے ارادے ریت کا ڈھیر ثابت ہو سکتے تھے۔ اس معاملے میں تمہاری حمایت بالکل نہیں کروں گی۔ تمہاری ماں کی فکر مندی بالکل جائز ہے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو جواباً وہ صرف مسکرا کے رہ گیا۔ مجتبیٰ جب سے گیا ہے اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ رابطہ ہے؟ انہوں نے اچانک باتوں کا رخ بدلا تو وہ چونک گیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ بڑی امی کو یقیناً کوئی بات یہاں تک کھینچ لائی ہے، وہ خیال درست ثابت ہوا تھا۔ جی کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، مصروف ہوگا اس لیے رابطہ نہیں کر پایا ہوگا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ وہ ان سے بات نہیں پوچھ سکتا تھا، اس لیے فقط تسلی دینے پہ اکتفا کیا۔ آپ کہیں تو میں ابھی آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے جھٹ سے فون نکال لیا۔ نہیں رہنے دو، یہ انکار نہ جانے کیوں اسے افسردہ کر گیا۔ وہ شاید کہنے یا نہ کہنے کے شش و پنج میں گرفتار تھی اور ان کے وجود میں چلتی اس جنگ کو وہ قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ کوئی خاص بات تھی جو انہیں اس تک کھینچ لائی، ورنہ معمولی باتوں کو انہوں نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ بڑی امی، آپ کو جو بھی بات پریشان کر رہی ہے آپ وہ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ آپ کا ودود آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ایک دم ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اتنے پر یقین لہجے میں بولا کہ ان کے لبوں پہ مدھم مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی۔ میں نور کے متعلق بہت فکر مند ہوں۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اب اس حویلی میں زیادہ رہنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہی ہوں اسے اپنی زندگی میں کسی ایسے کے سپرد کر دوں جو اس کی آنکھوں سے آنسو چن کر مسکراہٹ بکھیر دے۔ وہ چپ ہوئی تو اسے لگا جیسے خود کو مزید بولنے کے لیے راضی کر رہی ہیں۔ نور کے لیے اس حویلی سے زیادہ محفوظ جگہ بھلا کون ہو سکتی ہے؟ وہ ان کی بات بالکل نہیں سمجھا تھا۔ میرے بچے، لڑکیوں کو ہمیشہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا فقیر کی، ایک مقررہ وقت سے زیادہ بابل کے دیس نہیں رہتی، اور ویسے بھی ان کا گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں ان کا نصیب انہیں لے جاتا ہے، جہاں کی چار دیواری انہیں وہ تحفظ دیتی ہے جو دنیا کی پیاری سے پیاری اور محفوظ ترین عمارت بھی مہیا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ آپ اس کی شادی کے متعلق سوچ رہی ہیں؟ وہ حد درجہ حیران ہوا۔ اس نے یہ کب سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب اس حویلی کے خاموش کردار کو حویلی سے دور کر دیا جائے گا۔ بڑی امی کی بات نے اس کا سینہ جکڑ لیا تھا۔ ایسا ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟
वो उन्हें मुकम्मल सुनना चाहता था। मुज्तबा एक सुलझा हुआ लड़का है और मुझे यकीन है कि उसका साथ नूर को मिल गया तो मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। उसकी ज़िंदगी की सारी महरूमियों का अजाला हो जाएगा और ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने मुंतज़िर निगाहों से उसे देखा। इसके बावजूद मैं सवालों जवाब की अजीब कशमकश शुरू हो चुकी है। वो कई अनकहे सवाल जो सालों से उसने अपने वजूद में दबा रखे थे अब बाहर उमड़ने को बेताब थे, लेकिन मुकाबिल की हालत उसे ये इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो ऐसा कुछ सोचे। वहाँ से सिर्फ हाँ सुनने के लिए सवाल किया गया था और यकीन था कि यहाँ से मिलने वाला जवाब मनपसंद होगा। आप जो चाहेंगी मैं वो करूँगा बड़ी अम्मी, मैं हर तरह से आपके लिए हाजिर हूँ। उसने सारे सवाल वापस सोच की पटारी में डाले और पूरे यकीन से उनके हाथों पे गिरफ्त मजबूत की। मैं चाहती हूँ तुम मुज्तबा से मिलो, उससे नूरुल ऐन के मुतालिक बात करो, वो उसके मुतालिक क्या सोचता है ये जानने की कोशिश करो। उन्होंने पुरउम्मीद नज़रों से उसकी जानिब देखा। आप फिक्र ना करें, मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा। वो उनकी बातों से बहुत उलझ चुका था, लेकिन उन पे जाहिर ना करने की कोशिश में मसरूफ था। एक बात का ध्यान रखना कि ये बातें तुम्हारे और मेरे दरमियान रहें। हवेली में किसी को इस सब की भनक नहीं लगनी चाहिए। वो हद दर्जा मोहतात थी और उसे भी उसी बात की तलकीन कर रही थी। मैं एहतियात करूंगा। वो नीचे से उठकर उनके साथ बैठ गया और उन्हें बाहों में भरते हुए अपने मजबूत लम्स का एहसास कराया। अजलान की चीख नुमा आवाज़ ने उसको हवास बाख्ता कर दिया। वो ये समझ रही थी कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी उसकी समझ नहीं आ रहा था। उसने पीछे की तरफ देखना चाहा, लेकिन मिट्टी का गुबार उसकी आंखों को इस काबिल नहीं छोड़ रहा था। उस लम्हे वो वाकई डरी थी। उसे महसूस हुआ था कि ऊंचाई से ज़्यादा कुछ और भी खौफनाक था। लामिया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी लम्हे उसे अपने पहलू में अजलान की आवाज़ सुनाई दी तो सीने के पिंजरे में फिरफिराता दिल पुरसुकून हुआ। ये क्या हो रहा है? इतनी तेज तूफानी हवा, ये मिट्टी का गुबार और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखें खोलने की कोशिश बारहा नाकाम हो रही थी। ये समंदर में तूफानी हवाओं की वजह हो रहा है। हम लोग ऊंचाई पे हैं और हवा इतनी तेज रफ्तार है कि खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। रास्ता खतरनाक है, इसलिए सबसे पहले हमें किसी महफूज जगह पे पनाह लेनी चाहिए। वो उसे पुरसुकून करने के साथ साथ भरपूर कोशिश करते हुए आंखें खोलकर इर्द गिर्द देख रहा था। यहाँ इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, तुम कोई महफूज जगह कैसे ढूंढोगे? वो डर के बाइस झंझलाते हुए कहने लगी। पुरखार और पथरीले रास्ते पे यूं लेटे लेटे उसके बाजू दुखने लगे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमसे कुछ फासले पे एक बड़ा पत्थर है और समंदर उसके अकब में है। हम अगर उसकी ओट में हो जाएं तो तूफानी हवा से कदरे महफूज हो सकते हैं। यहाँ यूं लेटे रहना सरासर हमाकत है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई पत्थर लग सकता है। लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे? यहाँ छोटी बड़ी सीढ़ियां हैं, नीचे पत्थर ही पत्थर हैं और आंखों में इतनी मिट्टी घुस चुकी है कि मैं देखने की कोशिश भी नहीं कर पा रही। उसकी आवाज़ भर आई थी। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। जब जब तुम मेरे साथ होते हो एक नई मुसीबत मेरी मुंतजिर होती है। तुम यहाँ आए ही क्यों? किसने तुम्हें कहा कि तुम यूं हमारे फैमिली ट्रिप में दखल अंदाजी करो? मैंने कितना मना किया था कि पापा को कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती भेजा। मुझे सब समझ आ रही है कि तुम चाहते ही ये थे कि तभी तो एक बार भी मना नहीं किया और अब इस अजाब में फंसा दिया है। वो आंखों को मसलते हुए मुसलसल बोलती जा रही थी और इस बात से अनजान कि उसकी बातें मुकाबिल को खामोश कर चुकी थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हवाएं तेज हो रही हैं और काले बादलों की वजह से अंधेरा हो रहा है। बारिश हो गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अजलान ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसके मोतदल रवैये ने लामिया को तैश दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे वाकई कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूं? उसकी भीगी हुई आवाज़ मुकाबिल ने वाज़िया महसूस की।
ये लो। उसने पानी की बोतल लामिया के हाथ में पकड़ाई। ये पानी आंखों में डालो, इससे फर्क पड़ेगा। उसकी आंखों में जितनी शदीद जलन हो रही थी, उसने लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया था। वो यूं ही लेटे लेटे पानी के छींटे आंखों पे डालने लगी और कितनी ही बार ऐसा करने के बाद उसकी आंखें थोड़ा खुलने के काबिल हुई थी। बोतल अजलान को वापस पकड़ाते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े भीग चुके थे और कपड़े गीले होने के बाइस नीचे की सारी मिट्टी उसे चिपक गई थी। लामिया, उसके आराम से पुकारने पे ना चाहते हुए भी मुंदी आंखों से उसे देखने लगी। आंखों के गिर्द हाथों का हसार बना लो, थोड़ा रास्ता देखो और आंखें बंद करते हुए बाजुओं के बल चलो। कुछ ही बार ऐसा करने से हम इस पत्थर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यह ख्याल भी रखना कि यहाँ पत्थर बहुत नोकीले हैं। उसने मुकम्मल तफसील से आगाह किया, लेकिन लामिया के तासुरात से उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो समझ चुकी है या नहीं। लामिया ने उसकी सारी बातें सुनी और ना चाहते हुए भी खुद को ये सब करने के लिए आमादा किया, क्योंकि काले बादलों का झुंड वो देख चुकी थी। ठंडी हवा और गिले कपड़ों के बाइस उसे सर्दी महसूस होने लगी थी। उसने एक लंबी सांस ली और अजलान के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक आंखों के गिर्द हाथों का हिसार बनाते हुए आगे का रास्ता देखा। मिट्टी के शदीद गुबार के बाइस उसे सिर्फ 2-3 सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थी। उसने बाजुओं और टांगों के बल अजलान के पीछे चलना शुरू किया और दूसरी सीढ़ी पे ही उसके बाजू में कुछ चुभा था, लेकिन उसने कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए तकलीफ का इजहार नहीं किया। सब ठीक है ना? उसके रुकने का एहसास होने पे अजलान ने पूछा तो वो बिना जवाब दिए दोबारा आगे बढ़ने लगी। उसी लम्हे पहली बूंद उसके चेहरे से टुकराई थी। आम हालात होते तो उसी लम्हे उसकी खुशी दीदनी होती, लेकिन यहाँ पहले कतरे ने उसके वजूद को खौफ के असेब ने लपेट लिया। बारिश की रफ्तार तेज हो जाती तो पहाड़ों से पानी की रफ्तार के साथ पत्थर गिरने लगते और उसके साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाना था। अब गर्द बैठने लगेगी और हमें रास्ता साफ नजर आने लगेगा। बारिश तेज होने से पहले हम पहाड़ की ओट में पहुंच जाएंगे। अजलान शायद उसके डर को जान गया, तभी फौरन से वजाहत देने लगा। लामिया ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया था क्योंकि उसे अपने बाजू शल होते महसूस हो रहे थे। पथरीले रास्ते ने उसके बाजू और घुटने यकीनन जख्मी कर दिए थे। कुछ लम्हे के बाद गर्द बैठने लगी क्योंकि उन्हें अब वो पहाड़ साफ दिखाई दे रहा था। अजलान ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा, जैसे कह रहा हो, देखा मैंने ठीक कहा था। गर्द के कम होते और रास्ता कुछ साफ नजर आने पे अजलान थोड़ा सा उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ लामिया की तरफ बढ़ा दिया। उसने नाफहम नजरों से उसे देखा, लेकिन बिना कोई सवाल किए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसी ये लम्हात गनीमत लगे और वो उनसे भरपूर फायदा उठाने की सोच रहा था। वो यूं ही कमर झुकाए तेज तेज आगे बढ़ने लगा। लामिया ने उसकी पैरवी की और उसका साथ देने के लिए जिस्म में उठने वाली दर्दों को नजरअंदाज कर दिया। वो चंद लम्हों में पहाड़ की ओट में पहुंच गए, लेकिन बारिश की शिद्दत बढ़ चुकी थी। बारिश की तेज रफ्तारी के बाइस आंखों के आगे कतरों की चादर बिछ चुकी थी। वो परेशान निगाहों से इर्द गिर्द देखने लगा। तूफान के सामने उसे ये पहाड़ अपने बचाव का जरिया लगा, लेकिन बारिश ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। बारिश की तेज रफ्तारी नीचे की तरफ पानी के बहाव को तेज कर देती और यूं उनका यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता, और अगर बारिश तेज ना होती तो सर्दी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देती। आगे बढ़ना मुश्किल था, जबकि नीचे जाना नामुमकिन था। वो पहाड़ की ओट से निकलकर थोड़ा आगे हुआ कि शायद कोई आसरा मिल जाए, और उसी लम्हे पहाड़ से सिरकते हुए कुछ पत्थरों में से एक पत्थर उसके सर पे आन लगा। लामिया की चीख और अजलान के जमीन बोस होने में लम्हे का तवक्कुफ नहीं था। वो दोनों इस वक्त कुचहरी के हिजूम में फंसे हुए थे। आज का दिन नहायत मसरूफियत का हामिल था और कई ज़रूरी अमूर निपटाने के बाद वो दोपहर ढले उन्हें फुर्सत नसीब हुई थी। ताशफीन चंद अहम असरे वकला के साथ गुफ्तगू से फारिग हुए तो मुतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देखने लगे, और चंद लम्हात बाद ही उनकी निगाहों की तलाश ख़त्म हो गई। वो उन्हें थोड़े फासले पे कुचहरी के अहाते में लगे जामन के दरख्त से टेक लगाए खड़ा नजर आया।
जनाबे आली, आप किस मराकबे में गुम हैं? वो उसके पीछे आहिस्तगी से खड़े होते हुए इस तरह बोले कि वो चौंक गया। मैं इस दरख्त पे लगे सारे जामन अपने पेट की गजा बनते देख रहा हूँ। उसका अंदाज इतना संजीदा था कि वो एक पल को ये नहीं सोच सके कि मुकाबिल शरारत पे आमादा हैं। तुम कभी कभी नदीदेपन की इंतहा कर देते हो। वैसे तुम्हारा पेट है या कोई कुआं जो पूरे दरख्त का फल इसमें समो जाएगा? वो उसके बिल्कुल सामने बाजू पे स्याह कोट रखे सवालिया निगाहों से मुखातिब थे। जब इस छोटे से दिल में एक दर्जन लड़कियां समा सकती हैं तो इस पेट के साथ जुल्म क्यों किया जाए? उसने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए इस अंदाज में कहा कि ताशफीन के लबों को बेसाख्ता मुस्कुराहट छू गई। तुम कहीं से इतने मोतबर शोबे से वाबस्ता नहीं लगते। उन्हें इस वक्त इसके अलावा कोई जवाब नहीं सूझा था। जी, मुझे अंदाजा है। इस वक्त तो मैं आपको इंसान भी नहीं लग रहा, और वाकई मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि इस दरख्त के असल बासी जो कि हजारों साल पुराने हैं, मेरे जिस्म पे कब्जा कर चुके हैं और मुझे ऐसी ऊट पटांग हरकतें करने पे मजबूर कर रहे हैं। उसका हर जवाब पहले से भर कर था। तुम यहाँ से चलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी ऊट पटांग हरकतों के साथ साथ तुम्हें भी ठीक कर दूं। वो उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अहाते से बाहर ले आए। वो बिना किसी मुजाहमत के मुस्कुराते हुए उनके साथ चल रहा था। उन्हें कभी कभार उस पे किसी बच्चे का गुमान होता था जो पहले जी भर के सताता और बाद में लाड उठवाने का मुतमनी होने लगता। वो उसका हाथ पकड़े पार्किंग एरिया तक आ गए। कहाँ जाने का इरादा है? ऑफिस ही जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, वो करने के बाद घर के लिए निकलूंगा। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। कभी ऑफिस की जान छोड़ भी दिया करो, मेरे साथ चलो, मुझे एक काम है। वो मुकम्मल धूस जमाने वाले अंदाज में बोल रहा था। मुकाबिल के साथ सिर्फ वो ही ऐसा बोल सकता था। कुछ पता तो चले कि क्या काम है। वो शशोपंज का शिकार हो रहे थे। दाता दरबार पे हाजिरी देनी है। तुम कब से वहां जाने लगे? वो अजहद हैरान हुए। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ जी का खास हुक्म आया है। उन्हें लगता है उनका होनहार बेटा किसी मुश्किल में फंसने वाला है, सो मुझे वहां सदका करने के लिए और अपने पीछे लगी बुलाओं को टालने के लिए वहां जाना है। उसका अंदाज सरसरी सा था, सो उन्होंने जेरे बहस करने की बजाय गाड़ी का रुख उस रास्ते की जानिब कर लिया। शौकत साहिब की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कई दिनों से पकती सोच उसके सामने रखी। मैं भी यही सोच रहा था, हमें इनसे राब्ता करना चाहिए। नबील ने उनकी तायद की थी। मैंने मेल की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक नंबर दिया था, मैं सोच रहा हूँ उसी पे कॉल की जाए। उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो इस हवाले से काफी फिक्रमंद हैं। वैसे इस काम के लिए इतनी सोच विचार की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कहते हो तो कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह बैठा लेते हैं। नबील दौरानी के लिए संजीदा रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। तुम ये चुटकुले छोड़ने का क्या लोगे? तुम्हारी जान। उनके सवाल का जवाब बेसाख्ता आया था। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। दरबार उनके सामने था, सो गाड़ी रुक चुकी थी। मेरे चुटकुले भी खत्म नहीं हो सकते, वो कती लहजे में बोला। जनाबे आली, आप जाइए और जल्दी से अपना काम निपटा के आइए। ताशफीन बहस खत्म करने में ही आफियत समझी। तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? वो दरवाजा खोलते हुए रुका था। नहीं, मुझे ऐसी रश वाली जगहों से कोफत होती है। उनका इनकार सुनते ही वो कंधे उचकाता आगे बढ़ गया। इन दोनों का मजाज, आदात, फितरत कुछ भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। मशरिक व मगरिब जैसा वक्फा उनकी सोचों में हायल था। इस सब के बावजूद उन्हें वो चुलबुला शौक लड़का बेइंतहा अजीज था। वो हमेशा उन्हें वदूद जैसा लगता था। उनकी संजीदा मजाज तबीयत में अगर कोई मजाक का फूल उगा सकता था तो बिलाशुबा वो नबील दौरानी के अलावा कोई नहीं हो सकता था। वो एक सादा स्लेट दीवार की मानिद और वो उस दीवार से लिपटी एक फूलदार बेल की मिसल था। वो उसी के मुतल्लक सोच रहे थे कि अचानक शफकत साहिब का ख्याल जहन से आन चमटा। उसने फौरन से मोबाइल निकाला और वो नंबर ढूंढने लगा जो शफकत हुसैन ने उसे किसी इमरजेंसी के लिए दिया था। वो नंबर जल्द ही उन्हें मिल गया और लम्हे की सोच विचार करते हुए उन्होंने कॉल मिला दी। ज़ारा हुसैन स्पीकिंग। करीब था कि कॉल बंद हो जाती कि अचानक दूसरी तरफ से आवाज गूंजी। एक लम्हे के लिए वो भूल गए कि उन्हें किस सिलसिले में बात करनी थी। ये नहीं था कि वो लड़कियों से बात करते हुए हिचकिचाते थे, बल्कि उनका ख्याल था कि ये नंबर किसी मुलाजिम का होगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी थी। हेलो,
दूसरी तरफ से दोबारा आवाज आई थी। मैं ताशफीन अली चट्ठा बात कर रहा हूँ। मुझे शौकत सर की तबीयत से मुतल्लक पूछना था। उन्होंने बिना कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधे सीधा मतलब की गुफ्तगू की थी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी और उनके लिए ये खामोशी ताज्जुब अंगेज थी। डैडी की तबीयत संभल नहीं रही और इसी वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ से चंद लम्हे बाद जवाब आया और न जाने क्यों उन्हें लगा कि मुकाबिल की आवाज भीगी हुई थी। वो समझ ही नहीं पाए कि वो तसल्ली का कौन सा लफ्ज अदा करे जो दूसरी तरफ भी इतना ही बाअसर हो। आप परेशान ना हो, हम सब यहाँ उनके लिए दुआ गो हैं। थैंक यू। वो मजीद कुछ कहना चाहते थे कि दूसरी तरफ से आने वाला रस्मी सा जवाब उन्हें खामोश करवा गया। इससे साथ ही कॉल कट चुकी थी। कुछ लम्हे इतने गैर मुनासिब रवैये पे हैरान होने के बाद उन्होंने कंधे उचका दिए। वो सीट से टेक लगाए नबील दौरानी का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके वजूद में शफकत हुसैन की फिक्रमंदी डेरा डाल चुकी थी। वो उनके मोहसन होने के साथ साथ उस्ताद भी थे, सो ऐसा होना फितरी था। दोपहर ढलने में कुछ वक्त बाकी था। हवेली में इस वक्त कोई हलचल नहीं थी। नूर बीबी हस्बे आदत दोपहर की नींद ले रही थी। नूरुल ऐन हवेली की राहदारियों में अजीब बेचैनी के साथ घूम रही थी। यह वक्त उसका बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता था और वो बेताबी से शाम की मुंतजिर होती ताकि बड़ी अम्मा के साथ इलाके की औरतों के साथ बैठ सके। हवेली में घूम घूम कर तंग आ गई तो अकबी बाग की समत चली आई जहां डूबते सूरज का अक्स था। दरख्तों के लंबे साए ढलते दिन का पैगाम दे रहे थे। वो बरामदे में रखे बड़ी अम्मी के तख्त की जानिब चली आई। सारी हवेली में यह गोशा उसे हमेशा पुरसुकून महसूस होता था। यहाँ बैठकर उसके वजूद में मुस्बत असरात पैदा होते थे। उसने सरसरी सी नजर बाग की जानिब डाली, लेकिन निगाहें वापस पलटने की बजाय सुंबल के दरख्त पे टिक गई। एक चिड़िया बेचैनी से अपने घोंसले के गिर्द घूम रही थी। उसकी चूं चूं की आवाजें सन्नाटे में वाजिया महसूस हो रही थी। चिड़िया की बेचैनी उसे अपने वजूद में उतरती महसूस हुई और अपनी जात भी इसी चिड़िया की मानित लगी जिसका आशियाना बिखर रहा था। यह मंजर उसे एक पुरानी पड़ी हुई नज़म की मुजस्सम तस्वीर लगा था। पुरानी बात है लेकिन ये अनहोनी सी लगती है। हुआ एक बार यूं बस्ती के बागों में किसी भी पेड़ की टहनी पे कोई फल नहीं आया। हरे पत्तों का मौसम लौट कर वापस नहीं आया। परिंदे रो दिए और दूर के बागों में हिजरत कर गए सारे। बहुत आजुर्दा होकर बागबानों ने दुआएं की, मनाजातें पढ़ी, अपने गुनाहों की खुदाए लम यजल से माफियां मांगी और कियारियां काटी। हरे पत्तों का मौसम लौट कर वापस नहीं आया। परिंदे लौट आए थे नई बस्ती के बागों से, हरे पत्तों की टहनी तोड़ लाए थे। नूर बीबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अपने ही ख्यालों में मगन थी कि गुल की आवाज पे चौंक गई। गुल हाथ में तकिए और दीगर सामान लिए खड़ी थी। शाम से पहले यहाँ का मुकम्मल इंतजाम वो हर हाल में पूरा कर देती थी और अभी भी इसी गर्ज से वहां मौजूद थी। अंदर दिल घबरा रहा था तो यहाँ चली आई। खुली फिजा में अच्छा महसूस होता है और बड़ी अम्मी की जगह पे तो कुछ ज्यादा ही सुकून महसूस होता है। वो तख्त से उठ खड़ी हुई ताकि वो वहां बिछा बिस्तर ठीक कर सके। आप अब यूं उदास बातें ना किया करें और ये घबराना तो बिल्कुल ही छोड़ दें। गुल मुस्कुराते हुए बोल रही थी। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है? उसने हैरानी से गुल की मुस्कुराहट को देखा। कुछ हुआ तो नहीं बल्कि होने वाला है। मेरी सारी दुआएं आपके हक में कबूल हो गई हैं। उसकी मुस्कुराहट से अंदाजा हो रहा था कि उसे बेपाया खुशी है। गुल, ये पहेलियां ना बुझवाओ, जो भी बात है सीधी तरह बताओ। उसकी नजरें अब भी उसी चिड़िया पे मरकूज थी जो अब एक शाख पे खामोशी से बैठ गई थी। आपको वाकई कुछ नहीं पता? गुल उसके बिल्कुल पास आकर आहिस्तगी से बोली, जैसे किसी के सुन लेने का अंदेशा हो। तुम्हें कुछ कहना है या मैं जाऊं? वो उसी के पुर इसरार रवैये से तंग आने लगी थी। मैं रात को स्टोर से कुछ सामान लेने गई और वदूद साहिब के कमरे से गुजरते हुए मैंने बी जान की बात सुनी थी। वो इसी पुर इसरार धीमे लहजे में बोल रही थी। गुल,
किसी की छुपकर बातें सुनना कितनी बुरी बात है। उसने बाएं आंख के आबरू को उठाते हुए उसकी तरफ देखा और ये अमूमन उसकी हैरानी का इजहार होता था। बाखुदा नूर बीबी, मैंने छुपकर बातें नहीं सुनी। मैं बस वहां से गुजर रही थी कि आपका नाम सुनकर ठिठक गई और बस एक लम्हे में सारी बात समझ आ गई। वो अब डर गई थी और उसके सामने नाम लेने पे पछता रही थी। मेरा नाम? बड़ी अम्मी वदूद भाई से मेरी बात कर रही थी। अजहद हैरान हुई थी। क्या कह रही थी? उसे लग रहा था कोई खास बात थी जो बड़ी अम्मी खुद वदूद भाई के कमरे में गई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्द आप यहाँ से चली जाएंगी। रात मैं बीजान वदूद साहिब से कह रही थी कि वो मुजतबा साहिब से आपके लिए बात करें, उन्हें कहें कि आपको यहाँ से ले जाएं। वो आहिस्तगी से बोलते हुए भी बेइंतहा खुश थी और अपनी खुशी में उसका जर्द पड़ता चेहरा देख नहीं सकी। वो इस हकीकत से आगाह थी कि उसके वालिदैन की जिंदगी में उसकी हकीकत सिफर थी। वो दोनों उसकी जात के लिए इकट्ठे तो थे, लेकिन इस बात का बदला भी इसी से ले रहे थे। बड़ी अम्मी ना होती तो शायद उसके वजूद का नामो निशान भी मिट गया होता, लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं था कि उसकी इज्जत नफ्स नहीं थी, उसे उसी के एहसासात नहीं थे। यहाँ उसे किसी बात का बुरा नहीं लगता था। वो कोई गुड़िया नहीं थी जिसे जबरदस्ती किसी दूसरे के पल्ले बांध दिया जाए। उसके वजूद में एक गुबार पैदा होने लगा जिसने उसके हवास को मफलूज कर दिया था। गुल मजीद क्या बोल रही है वो सुन नहीं पा रही थी। उसे हवेली की ऊंची दीवारों से नफरत महसूस होने लगी थी। उसे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। गुल अपनी रो में उसे सारी दास्तान सुनाकर खुशी खुशी दूसरी चीजें लेने वापस हवेली के अंदर चली गई। वो उसकी खुशी में इस कदर मगन थी कि आज उसके सपाट चेहरे के पीछे छुपे गम को समझ नहीं पाई। उसने खाली बरामदा देखा और न जाने क्या सोचकर कदम बाग से पार बैरूनी राहदारी की तरफ बढ़ा दिए। वो यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी। इन सब लोगों से उसे नफरत महसूस हो रही थी जिन्होंने उसकी जात को तमाशा बनाकर रख दिया था। उसके माँ बाप को उसकी परवाह नहीं थी तो उसने खुद को वहां से गुम कर लेना चाहा था। बीबी जान, आप कहाँ जा रही हैं? वो बैरूनी दरवाजा खोल रही थी कि उसे अपने अकब में यूसुफ की आवाज सुनाई दी। उसने ये आवाज सुनी ही नहीं और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसके सामने दूर तक सीधी सड़क थी। एक लम्हे को उसके कदम रुके थे, लेकिन वजूद में जलती आग इस कदर शदीद थी कि सुनसान रास्ता भी कदमों की जंजीर नहीं बना। बीबी जी रुकिए। नूर बीबी कहाँ जा रही हैं? यूसुफ उसके पीछे पीछे चला आया था। उसे रुकना था और ना वो यूसुफ के बार बार पुकारने पे रुकी थी। कितने ही कदम वो उसके पीछे बार बार पुकारते आया, लेकिन उसके ना रुकने पे वापस पलट गया। वो हर चीज से अनजान बस चलती जा रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार इस तवील रास्ते पे अकेले कदम रखे थे, लेकिन वो हर खौफ से बेनियाज नजर आ रही थी। उसे किसी अंजाम का डर नहीं था, बस उसे दूर जाना था। हर लम्हे बाद उसके कदम तेज तर होते चले जा रहे थे। शाम फैलने में थोड़ा वक्त था। किंजा के बार बार बुलाने पे भी वो उनकी तरफ नहीं गई तो चंद लम्हों बाद वो खुद ही चली आई थी। किंजा ने गुस्सीले तासुरात से उसे देखा, लेकिन मुकाबिल को परवाह क्या थी। तुम्हें कितनी बार बुलाया है, सुनती क्यों नहीं हो? वो उसके सर पे कड़े तेवर लिए खड़ी थी। तुम आ गई हो ना, तो अब सुना भी लो। उसने बेमुरव्वती की इंतहा कर दी। वैसे कभी कभी मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। बदलते मौसम की तरह हो तुम, पल में तोला पल में माशा। वो रूठेपन से खुद ही उसके पास रखी कुर्सी पे बैठ गई। आप मुझ पे इतना गौर फिक्र फिर कभी कर लीजिएगा, पहले यहाँ तशरीफ लाने की वजह बता दें। किंजा के तंज भी उसके रवैये को बदल नहीं पाए। भाई तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम वो नहीं उठा रही। मैं तुम्हें बुला रही थी, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। आखिर मसला क्या है? उसे हल्के में छोड़ने वाली नहीं थी। मसला ये है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। और कुछ? उसने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजाते हुए उसकी तरफ देखा। किंजा ने शदीद कोशिश के बाद अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। तुम मुझसे नाराज हो? वो उसके रवैये की वजह जानने की कोशिश करने लगी। ये नादिर ख्याल आपको आया कहाँ से? उसकी आपकी गर्दान किंजा को परेशान किए जा रही थी। तुमने सुबह यूनिवर्सिटी में मुझे कहा कि तुम लाइब्रेरी जा रही हो। मैं थोड़ी देर बाद वहां आई तो तुम वहां नहीं थी। उसके काफी देर बाद भी तुम मुझे नहीं मिली और वापसी पे भी नाराज लगी। इसका मतलब यही ना कि तुम मुझसे नाराज हो? अब के उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी थी। वो दोनों आपस में जितना भी लड़ लेती, लेकिन एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकती थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। आखिर उसे तरस आ ही गया। तभी किंजा की बात सीधा जवाब दिया था।
फिर चलो ना हमारे साथ। कहाँ? वो हैरान हुई कि शाम ढले उसे कहाँ जाना है। भाईजान सैर कराने का कह रहे हैं, उन्होंने इसी वजह से तुम्हें फोन किए, लेकिन मैडम के मजाज ही नहीं मिलते। अब किंजा ने निरूठेपन से जवाब दिया था, उन्हें कहो उस आफशीन के साथ सैर करते रहें, इज्जत तो नहीं जाने वाली अब उनके साथ। उसकी हूं पे किंजा बे इख्तियार हंस दी। तुम दोनों मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हो, आपस के मसले में मुझे पीस देते हो। उसका बस नहीं चल रहा था अपना सर फाड़े या सामने बैठी बेमरवती की मूरत का। आपस का मसला कहाँ, तुम बताओ। तुम्हें वो नकचड़ी मसनूई नखरे वाली आफशीन हाजम भाई के साथ अच्छी लगती है? वो अपनी सारी कार्रवाई गोल कर गई थी। उसे मालूम था कि हाजम भाई ने भी उसे ये नहीं बताया होगा कि वो उनके कमरे की तलाशी लेती रही थी, सो उसने सारा मलबा उन पे डाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी कब से उनकी शादी के पीछे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अम्मी को बता देते। अब ये आफशीन नामा बस कर दो। यकीन करो ऐसा लग रहा है जैसे सातवें घर की लड़ाई लड़ने का जिम्मा तुमने ले रखा है। किंजा ने तंग आकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। अच्छा ठीक है, ये ड्रामे बंद करो। उसका मजाज कदरे बेहतर हुआ था। फिर चल रही हो साथ? उसने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर किसी दिन चलेंगे। उसने किंजा को तंग करने का इरादा छोड़ दिया, वगरना करीब था कि वो उसका सर फाड़ देती। तुम नहायत बदतमीज हो। पहले नहीं बता सकती थी कि खाला की तबीयत खराब है, इसलिए नहीं जा रही। मेरा बेसबब आधा खून सुखा दिया। उसने वाकई एक चिपत रसीद कर दी थी। इज्जत का कहका बेसाख्ता था। उसकी सारी नाराजगी और गुस्सा पल में उड़न छू हो गया। किंजा ने उसके हाल पे छोड़ा और खाला की तबीयत का पूछने बरामदे की सिमत भर गई। वो भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे चली आई। सिडनी की फिजाओं में परिंदों की वापसी का अमल शुरू हो गया था। नीले पानी के पार आफताब की शुआएं डूब रही थी। मौसम एकदम अपने तेवर बदल चुका था। सबक रवि से चलने वाली हवा इस वक्त तूफानी रफ्तार में बदल चुकी थी। साहिल से टकराने वाली लहरें इतनी बुलंद थी कि वहां खड़े रहना खतरे से खाली नहीं था। सो इंतजामिया की तरफ से साहिल खाली करवा लिया गया था। पाम बीच की सुनहरी रेत पे इस वक्त खौफ का रक्स जारी था। इब्राहिम, आप कुछ कीजिए ना, मेरा दिल खौफ से फट जाएगा। उनकी आवाज में डर की झलक बहुत वाज़िया थी। आप परेशान ना हों, वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अमदादी कार्रवाई करने वालों के साथ राब्ता कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बिगड़ती हालत मुझे फिक्रमंद कर रही है। मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर किसी दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। वो बालकनी में फोन कान से लगाए मुसलसल चलने में मसरूफ थे। एक बेचैनी उनके वजूद पे काबज हो चुकी थी, लेकिन फातिमा की हालत उनकी बेचैनी को अरूज बख्श रही थी। लामिया और अजलान के जाने से वो दोनों मुतमिन थे। उसके शौक की तकमील ही इन दोनों को खुश किए जा रही थी। इन दोनों के आने से पहले वो फिशिंग पे जाने के लिए सारी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते थे। सो फातिमा को आराम करने का कहकर वो फोन पे मसरूफ हो गए। उन्हें सर्दी महसूस हुई तो बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि फातिमा की तबीयत ख़राब ना हो। वो फ़ोन पे ही मसरूफ़ थे कि बाहर से आने वाली आवाज़ें चौंका गई और सूरत हाल जानने के बाद उनकी हालत बेसरो समा मुसाफिर की मानिंद थी। वो बालकनी में खड़े पशेमान निगाहों से ऊपर ऊंचाई की तरफ देख रहे थे, जहां सिर्फ गर्दो गुबार था। कोई मंजर वाजिया नहीं था और ये नज़ारा देखकर उनका दिल डूब कर उभरा था। वो चाहकर भी हालात की नज़ाकत फातिमा से छुपा नहीं पाए थे। कुछ पता चला? उन्होंने मोबाइल कान से हटाया ही था कि वो बेचैनी से पूछने लगी। अभी कोई भी अमदादी कार्रवाई नहीं हो सकती। ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है और कुछ देर तक अंधेरा हो जाने के बाद मजीद मुश्किल हो सकती है। उनके पास बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। काफ़ी लोग ऊपर फंसे हुए हैं। वो लोग जल्द अज जल्द कुछ करेंगे। इब्राहिम, मेरी बच्ची। वो रोते हुए उनके सीने आन लगी और वो उन्हें दिलासा देते हुए आंख में आई नमी को छुपाने लगे थे। फातिमा, आपको इस वक्त यूं परेशान होने की बजाय उसके लिए दुआ करनी चाहिए। और वैसे भी वो अकेली नहीं है, अजलान उसके साथ है। ये तूफान थम जाए, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बस आप हिम्मत रखिए। वो उन्हें साथ लगाए बिस्तर की तरफ ले आए थे। लामिया और अजलान के साथ साथ उन्हें अब फातिमा की भी फिक्र होने लगी थी।
वो खुद से बेजार और इर्द गिर्द से बेनियाज चलती जा रही थी। उसके सफेद पांव मिट्टी से अट चुके थे। उसकी बदली बदहाल हालत राहगीर अजीब निगाहों से देख रहे थे। उसका हुलिया बता रहा था कि वो इस इलाके के दीगर आम औरतों जैसी नहीं थी, और यही वजह थी कि कोई उससे कुछ पूछने की जसारत नहीं कर रहा था। ऊंचे दरख्तों के साए तले खड़ी औरतों के लिए उसे देखना एक दिलचस्प मरहला था, सो वो सरगोशियों में उसके मुतल्लिक गुफ्तगू में मसरूफ थी। हवेली में जिन औरतों ने उसे देख रखा था वो हैरानी की इंतहा पे थी। उसी लम्हे एक धूल उड़ाती जीप उसके पास आन रुकी और एक शख्स दीवार की तरह उसके सामने ऐस्तदा हो गया। उसका रास्ता बंद हो चुका था। सामने वो था, बाएं तरफ गाड़ी और दाएं तरफ नहर जिसमें गदला पानी सुबक रवि से रवां था। उसके पीछे, बहुत पीछे, सफेद हवेली अपनी ऊंचे चुबारों के साथ मौजूद थी जहां उसे नहीं जाना था। मेरा रास्ता छोड़ो, वो आने वाली को पहचान चुकी। आपको ये सब करना जेब नहीं देता। आपकी ये बदहाल हालत सफेद हवेली की उजली पेशानी को दागदार कर सकती है। इससे पहले कि बात इन औरतों की जुबान पे होने वाली खुजली के बाइस इलाके में फैल जाए, मेरे साथ चलिए। वो निगाहें झुकाए खड़ा था। उसके लिए आगे बढ़ते हुए जीप का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ी थी। बात फैलने से बचाना चाहते हो? बात आम, लेकिन लहजा कितना तलख था ये मुकाबिल वाजिया महसूस कर रहा था। जी, कितनी ताबेदारी थी उसके लहजे में। फिर क्या करना चाहिए मुझे? उसने सवाल ने ज़िगम अब्बास को कदरे मुत्तमिन किया। आप गाड़ी में बैठिए ताकि शाम गहरी होने से पहले मैं आपको वापस हवेली में पहुंचा दूं। शाम का वक्त था। लोगों की कसीर तादाद वापस घरों को लौट रही थी और वो दोनों यूं सरे राह खड़े सबकी निगाहों में आ रहे थे। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। उसके मुस्बत जवाब पे वो दरवाजे से पीछे हट गया ताकि वो आसानी से बैठ सके। लेकिन मुझे हवेली नहीं जाना। नूरुल ऐन की अगली बात ने उसके पीछे हटते कदम रोक दिए। वो सवालिया निगाहों से सामने खड़ी लड़की को देखने लगा, जिसके चेहरे पे छाया हुज़न जमीन पे उतरती शाम की तरह खूबसूरत था, जिसका पुरमलाल चेहरा किसी अरूसा से ज्यादा से खैरा कर देने वाला था। और शायद मजीद इस तारे भी वो ढूंढ लेता अगर उसे देखने का उससे ज्यादा हौसला रखता। हवेली नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? वो पाँव के अंगूठे से मिट्टी खोदने लगा, जो उसकी बेचैनी की इलामत था। मुझे कहीं दूर जाना है, इतनी दूर जहाँ कोई इस इलाके के नाम से भी ना वाकफ हो। तुम उजरे शजर का दुख जान लेते हो, जर्द पत्तों की नई जिंदगी बख्शने का हुनर जानते हो, तो फिर मेरा दुख भी समझो, मेरे दर्द की दवा भी ला दो। मुझे यहाँ से कहीं दूर छोड़ आओ, किसी अनजान रास्ते पे डाल दो कि शायद वहाँ कोई मंजिल मेरा मुकद्दर हो। उसके लहजे की तकलीफ और आंख में चमकते चंद कतरे ज़िगम अब्बास को बेबस कर गए थे। वो एक तवाना मर्द था। उसके लिए कतन मुश्किल नहीं था सामने खड़ी कमजोर सी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता या अपनी चलाते हुए उसे हवेली के दरवाजे पे छोड़ आता, लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी पलकों की बाढ़ से निकलते एक नमकीन कतरे ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अंधेरा हो रहा है और इस वक्त आपको हवेली में ना पाकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। आप भी जान का ही सोचिए कि वो आपके लिए कितनी फिक्रमंद होंगी। उसने दिल पे पांव रखते हुए उसे एक बार फिर कायल करने की कोशिश की थी। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। उसके अटल जवाब ने उसे बेबस कर दिया था। अब उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि उसकी मानी जाए। वो नूरुल ऐन की हालत बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वो दुखी थी, परेशान थी, लेकिन इसके अलावा वो ऐसा क्या था जिसने उसे यह हरकत करने पर मजबूर कर दिया? वो अगर उसको पहचानता नहीं तो बाकी लोगों की तरह वहां से गुजर जाता, और तब उस लड़की के साथ क्या होता, ये बात वो सोच भी नहीं पा रहा था। ज़िगम की यकीन दहानी पे वो जीप के खुले दरवाजे से सीट पर बैठ गई। उसने गाड़ी हवेली से मुखालिफ सिमत की जानिब मोड़ ली थी। नूरुल ऐन की जिद पे उसने जो फैसला किया वो नहीं जानता था उसका अंजाम क्या होगा। वो सैकड़ों फुट बुलंद पहाड़ी पे अपने दोनों हाथ मजबूती से होंठों पे जमाए चीखों का गला घोंटने की कोशिश कर रही थी।
चंद लम्हों का खेल था, उसके समझने से पहले ही वो उसकी आंखों के सामने वहां गिर पड़ा था। एक बुलंद चीख मारने के अलावा उसके जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो आगे बढ़ पाती। वो पहाड़ के नीचे बनी छोटी सी गार के मानिद जगह पे थी, जबकि वो उस गार से थोड़ा आगे बढ़ गया। उसी लम्हे ऊपर से आते पत्थरों का निशाना बन गया। उसके इर्द गिर्द पत्थर तसलसल से गिर रहे थे और वो वहीं साकत खड़ी उसको अब कोई पत्थर ना लगने की दुआ कर रही थी। अजलान, तुम ठीक हो? वो आंसुओं की रवानी में हिम्मत मुजतमा करते हुए बोली, तो अंदाजा हुआ इतने शोर में आवाज उस तक पहुंच ही नहीं सकेगी। अजलान अब की बार वो चीख कर बोली, लेकिन दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी। या अल्लाह मदद कर, मेरे अल्लाह रहम कीजिए, अजलान को कुछ ना हो, अल्लाह ताला जी मदद कीजिए। वो अब ज़ारो कतार रोने लगी थी, रोते हुए बुलंद आवाज़ में दुआएं मांगने लगी। उसी लम्हे अजलान के वजूद में हरकत हुई। लामिया अपनी दुआ की बारियाबी देखते हुए बार बार वही अल्फाज दोहराने लगी और उसी लम्हे उसकी नज़र अजलान के बाएं सिमत पे पड़ी थी। वो होश में आ रहा था, लेकिन इर्द गिर्द से बेखबर था। उसके बिल्कुल साथ ढलान और नीचे सीढ़ियां थी और उस तरफ गिरने की सूरत में क्या हो सकता था, ये सोचकर उसकी रूह कांप गई। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और हर तरह के खतरे को नजरअंदाज करती गार्ड से निकल आई। वो उसे मरने नहीं दे सकती थी, अपनी आंखों के सामने उसके साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकती थी। अजलान, आंखें खोलो। उसके सर के पास खून था और उसकी जान फना करने को ये मंजर ही काफी था। लामिया ने अपना जोर लगाते हुए उसको डहलान की तरफ से पीछे खींचा। उसने अजलान को उठाने और गार की जानिब लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में लगातार नाकाम हो रही थी। उसके बाजू और घुटने जख्मी थे और उससे ज्यादा जोर लगाना उसके बस में नहीं था। शाम गहरी हो रही थी और सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि यहाँ खुली हवा में वो खुद को जमता हुआ महसूस कर रही थी। रात का अंधेरा ज्यादा खतरनाक हो सकता था। बारिश, पत्थर और तूफान कोई भी नई आफत ला सकते थे। उसने खुद को और अजलान को बचाने की मजीद एक कोशिश की। अब की बार उसे टांगों की जानिब से खींचना शुरू किया, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब रही थी। वो मुसलसल कितने मिनट मेहनत करने के बाद बिला आखिर उसे गार में ले आई थी और उसके साथ रात के अंधेरे ने उसके दिल में उम्मीद के सारे रोशन दिए बुझा दिए थे। उस अंधेरे और तूफान में कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचेगा। पानी, अजलान की नकाहत से भरपूर आवाज ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। उसने फौरन से इधर उधर हाथ मारे कि पानी की बोतल ढूंढ सके। उसी पल उसके हाथ में मोबाइल आया था। मोबाइल देखकर उसे खुद पे शदीद गुस्सा आया। उसके जहन में क्यों नहीं आया कि वो किसी को मदद के लिए कॉल करे। सबसे पहले मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए उसने बोतल ढूंढी और अजलान को पानी पिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। सर से बहता खून भी रुक चुका था। उसने सबसे पहले पापा का नंबर मिलाया और वो हैरान थी कि अब तक किसी ने उन्हें कॉल क्यों नहीं की। वो लोग इस तक बेखबर तो नहीं हो सकते। उसके सवालों का जवाब उसे अगले ही लम्हे मिल गया जब नेटवर्क ना आने का जवाब मिला। उसने मायूस निगाहों से मोबाइल की जानिब देखा। हम फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आंसू एक बार फिर आंखों से टपकने लगे थे। राहदारी में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई थी, सो सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए थे। किंजा ने उससे कैफे में जाने की बहुत जिद की, लेकिन उसने जाना था और ना वो गई। यहाँ बैठे वो अपने ही ख्यालों में मगन थी। कुछ दिनों से अम्मी परेशान दिखाई दे रही थी और उसके बार बार पूछने पर भी परेशानी की वजह बताने के लिए आमादा नहीं थी। वो खुद को जितना भी घरेलू मामलात से बेनियाज रखती, लेकिन अम्मी के चेहरे पे गम की एक झलक उसे बेचैन कर देने को काफी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कोई बहुत आहिस्तगी से उसके पास आन खड़ा हुआ। उसने चौंक कर आने वाले को देखा और न जाने क्यों इस बात में सर हिला दिया। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मेरी दोस्त कैंटीन की तरफ गई है, मेरा दिल नहीं था सो यहाँ बैठ गई। इज्जत की जानिब से नरम लहजे में मिलने वाले जवाब ने मुकाबिल पे हैरत की बिजली गिराई थी। क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? वो लम्हे में उसके तासुरात जान गई। आपकी जानिब से इतने नरम लहजे में जवाब वसूल करने की सादत पहली बार हासिल हुई है ना? उसके जवाब पे वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी।
अरे वाह! आप तो हँसती भी हैं। मुज्तबा को उसकी ज़ात के नए रंगों से आशनाई हो रही थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं एक आम इंसान ही हूँ। बस आपसे जब भी टकराव हुआ अजीब हालात में हुआ, इसलिए आपकी पहली राय पुख्ता होती गई। उसका लहजा तहज़ीब के दायरे में था और मुज्तबा उसकी बातों से कायल होने लगा। वैसे मुझे मुज्तबा ज़ुबैर अहमद कहते हैं। उसे अचानक याद आया कि तारुफ अधूरा है। जानती हूँ, बेनियाज़ी से जवाब आया। वो कैसे? वो एकदम चौंका। हम एक क्लास में हैं, इतनी आगाही तो हो सकती है। इज़्ज़त ने उसके हैरान होने की वज़ाहत दी। वैसे मेरा नाम इज़्ज़त फ़ातिमा है। जानती हूँ। उसके जवाब पे वो बिल्कुल नहीं चौंकी। पूछेंगे नहीं कि ये कैसे जानता हूँ? इज़्ज़त ने उसके शरारती अंदाज़ को हैरत से देखा। उसके लहजे में कुछ ऐसा नहीं था कि उसे मुहतात होने की कोशिश करनी पड़ती, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उसे मुतवज्जा कर रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी। कैसे जानते हैं? वो पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में हलकोरे लेता तजस्सुस पूछने पर मजबूर कर गया। मैं आपका नाम तब से जानता हूँ जब आपके साथ पहला टकराव हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। इज़्ज़त की आंखों के सामने वो मंजर लहरा गया और मुकाबिल की मुस्कुराहट उसे शदीद तरीन तंजिया महसूस हुई। आप मुझ पे तंज कर रहे हैं? उसका मजाज एकदम बिगड़ा था। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बल्कि मैं उस दिन के लिए वाकई शर्मिंदा हुआ हूँ। लेकिन बस मैं आपके साथ टकराव में मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बिगड़ते मजाज को देखते हुए उसने अजलत में वजाहत दी कि मुबादा यहाँ कोई नया फसाद शुरू ना हो जाए। उसकी वजाहत ने इज्जत को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो ये सब ही तो करती आ रही थी और अब अगर वो तमीज के दायरे में रह उससे बात कर रहा था तब भी वो उसे गलत समझ रही थी। उसने कितने आराम से अपनी गलती की माफी मांगी और उसे याद था वो तब भी उनसे माजरत करता रहा, लेकिन उसने बीच चौराहे में उसे बेनुक्त सुनाई और अब भी उसकी वजाहत को तंज समझ रही थी। उसे अपने रवैये पे इस वक्त शदीद शर्मिंदगी हुई थी। मेरी तबीयत में बहुत जल्दबाजी है। मैं अक्सर अपनी इसी आदत की वजह से बहुत अजीबो गरीब हरकत कर जाती हूँ और इसके गवाह तो आप खुद ही हैं। उसने दानिस्ता वजाहत दी थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। हम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। दरअसल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था कि उस दिन आपने मेरे दोस्तों की मदद की। वैसे भी जितना अच्छा आपने उन्हें समझाया मैं कभी वैसा नहीं कर सकता था, बल्कि कुछ पॉइंट्स मेरे भी क्लियर हो गए। उसे अचानक याद आया कि वो यहाँ किस लिए आया था। वो इतना शोर कर रहे थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो उन्हें समझाना और चुप कराना अपनी पहली तरजीह समझता। वो अपने जवाब पे खुद ही मुस्कुरा दी। लेकिन आप एकदम वहां से चली क्यों गई? उसे उसका एकदम चले जाना याद आया तो पूछ बैठा। अभी तो आपको बताया कि मैं बहुत जल्दबाज हूँ। उसकी वजाहत ने वहां मौजूद अजनबियत को एकदम खत्म कर दिया था। कुछ नए जाविये बनने लगे जो दो किनारों को जोड़ने की कोशिश करने वाले थे। कोई खुशनुमा बेल तनावर शक्ल इख्तियार कर रही थी जो दो दीवारों में पुल का काम करने वाली थी। चलें, मुझे चलना चाहिए। आपकी दोस्त भी आने वाली होगी। वो अपनी चीजें समेटने लगा। आप चाहें तो बैठ सकते हैं। उसे आपकी मौजूदगी से कोई मसला नहीं होगा। वो शायद अपने गुज़श्ता रवैये की तलाफी करना चाहती थी। जी, मुझे अंदाज़ा है वो काफ़ी समझदार हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वो पल में उसके पस मंज़र में पहुंची। लेकिन इस बार उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि वो चाहते हुए भी बुरा लगने का दिखावा नहीं कर सकती थी। वो जा चुका था और उस वक्त भूल चुकी है कि कुछ लम्हे पहले वो किन सोचों के सबब परेशान हो रही थी। उसी लम्हे उसे किंजा अपनी तरफ आते नजर आई। उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया क्योंकि लेक्चर शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था। कौन था ये? वो आते ही कमर पे हाथ टकाते सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो उसके अंदाज पे हैरान हुई। मैं दूर थी, लेकिन मुझे कोई तुम्हारे पास से उठता हुआ नजर आया था। वो अब भी उसी हालत में खड़ी थी। ज्यादा बेजमालो बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ आराम से बैठकर भी पूछ सकती हो। उसने किंजा का हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे की जानिब खींच लिया। हाँ, अब आराम से पूछ रही हूँ। ये कौन था? इज्जत हमेशा से उसके साथ रही थी। इसके अलावा कोई दोस्त उसका नहीं था और अब यूं उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे की मौजूदगी उसे हजम नहीं हो रही थी। यह मुज्तबा था।
اس نے ساری تفصیل اسے بتا دی۔ کنزا حیرانی سے اس کا اطمینان دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ نئے لوگوں ساتھ وہ اتنی آسانی سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی کہ جا کے کسی کے ساتھ اتنی دیر باتیں کرنا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا عجیب نہیں لگتا، مگر دوسری طرف وہ انسان تھا جس کے ساتھ عزت 2 بار لڑ چکی تھی اور اس کے ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ وہ عزت کے اس بدلتے رویے کی وجہ بالکل سمجھ نہیں پائی، لیکن اس وقت مزید سوالات کرنا اسے مناسب نہیں لگا۔ اور دروازے کے اوپر ایک لوہے کے راڈ سہارے لگا بلب سنہری روشنی سے چند گز حصے کو روشن کر رہا تھا۔ گاڑی رکنے کے چند لمحے بعد سیاہ دروازہ کھل چکا اور دروازہ کھولنے والا سامنے کا منظر دیکھ کر حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ جیپ پتھروں سے بنی روش پہ چلتی ہوئی احاطے کے سامنے رک گئی۔ جہاں جیپ کھڑی تھی اس کے 2 اطراف میں وسیع زمین تھی، جہاں زمین کا سینہ چاک کر کے فصلیں اگائی گئی تھی۔ ایک حصہ جانوروں کے لیے جبکہ دوسرا حصہ رہائش کے لیے تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، سامنے ایک راہداری ہے، اس کے اختتام جو کمرہ ہے آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ گھر کے دیگر ضروری حصے بھی اسی طرف ہیں۔ وہ جیپ کا دروازہ کھولے کھڑا مدھم آواز میں اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ وہ گاڑی سے نہیں اتری تھی۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ یہاں محفوظ ہیں۔ وہ اس کے لہجے میں چھپا خوف لمحے میں جان گیا تھا، تب بھی اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے راستوں کا اندازہ نہیں تھا، وگرنہ یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آتی۔ گہری ہوتی شام میں وہ بس یہ سمجھ پائی تھی کہ نہر کنارے انہوں نے تقریباً 10 منٹ سفر کیا تھا، اور اس کا مطلب تھا ابھی وہ چٹھا خاندان کی حدود میں ہیں۔ کیا مسئلہ ہے بیگم؟ یہ بچی کون ہے؟ ان دونوں کی بات جاری تھی کہ دور کھڑے ادھیڑ عمر مرد وہاں چلے آئے۔ اب فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ مہمان ہے، اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں دلاسا دیا۔ وہ اگر اپنے بیٹے کے متعلق پر اعتماد نہ ہوتے تو یقیناً کئی سوالات کرتے، لیکن اس وقت سر ہلاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان دونوں کی گفتگو نے اسے تقریباً پرسکون کیا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی غلط جگہ لے کر آیا تھا، بلکہ اپنے گھر لایا جہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ وہ پہلے بس حویلی سے دور جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں اسے اپنے ماں باپ کا نام بھی سنائی نہ دے، لیکن جوں جوں گاڑی کے پہیے گھومنے لگے اس کی ساکت حسیات نے سنگینی کا احساس کرانا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں امڑنے والے خیالات کے باعث ہی وہ اندر جانے سے کترا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں جلد بازی میں اس نے غلط فیصلہ نہ لے لیا ہو، اپنے پاگل پن میں کسی غلط آدمی پہ یقین نہ کر لیا ہو۔ لیکن اب وہ تقریباً پرسکون تھی۔ تبھی اس کی بات ختم ہونے کے بعد جیپ کے کھلے دروازے سے نیچے اتر آئی۔ اس نے جس سمت کو اشارہ کرتے ہوئے جانے کا کہا تھا آرام سے اسی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سفید چپس کے فرش پہ چلتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر اس کی حویلی جیسا بڑا اور سہولیات سے آراستہ نہیں تھا، لیکن پرسکون تھا۔ سفید دیواروں پہ محبت کے نقش اس کی محبت تلاشتی نگاہوں کو نہایت واضح دکھائی دیے۔ چھوٹی سی راہداری انہیں سوچوں میں کٹ گئی اور اب سامنے وہ کمرہ تھا جہاں اس کو رکنے کا کہا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے محتاط نگاہیں ارد گرد دوڑائی، لیکن سب کچھ معمولی تھا۔ کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اس کے خدشات سے بھرے دل کو نئے وہموں کے سپرد کر دیتا۔ سو اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندھیرے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے کمرے میں روشنی کرنے کی کوشش کی اور دروازے سے کچھ دور بٹن پہ ہاتھ لگنے سے کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرہ بھی توقع کے مطابق راہداری کی طرح سادہ تھا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس کے کانوں میں باہر کی آوازیں پڑی، لیکن نافہم آوازوں پہ کان دھرنے سے بہتر اسے دروازہ بند کر کے پرسکون ہونا لگا تھا۔